Hello students, hope all of you all are well. The same can be said about me here. Today we will continue the story A Horse and Two Goats by R.K. Narayan. The story so far, we have learnt about Muni's village. The name of Muni's village is Kirtam. Muni is the main character. He takes care of the goats and sheep, but presently he has just two goats with him, and every day Muni takes these two goats to graze somewhere outside his village near a main road. A main road passes somewhere close to his village, and there is a horse where Muni goes and sits. But the story starts where Muni he somehow manages to break some drumsticks, Mungnafalli, and he has a great desire to eat this drumstick. He asks his wife, who is his childhood companion. They got married at a very young age. He asks her to make some sauce out of the drumstick, out of the Mungnafalli. The wife, who is a bit angry, she tells him that Muni hardly has any teeth in his jaw, but he craves to eat big things. So she tells him to go to the shop and get certain ingredients on credit from the shopkeeper. When Muni goes there, the shopkeeper does not entertain him much because Muni already owes him 5 rupees and 4 annas. And when he asks the shopman for the ingredients, the shopman reminds him that he owes him some money. And Muni sulkily he goes back because the shopman also has reminded him about his age. The shopman told him that he might be at least 70 years old. Now Muni is worried. He goes back, he sits in the house in a corner, and there he sulks. His wife angrily tells him that today there is nothing to eat, not even the ordinary laddus that she used to make out of flour and water, and today he has to go hungry and he should not return back until the sun sets. So Muni he proceeds to his regular haunt to graze his goats. Now we will continue the story from here. The shopman had said that he was 70. At 70, one only waited to be summoned by God. When he was dead, what would his wife do? They had lived in each other's company since they were children. He had been told on the day of the wedding that he was 10 years old and she was 8. Progeny? None. Perhaps a large progeny would have brought him the blessings of the gods. So Muni now is worried. Why? Because the shopman also has told him that he is 70 years old. तो मुनि को लगता है ये 70 साल का हो चुका है, और 70 साल में इंसान करता क्या है? भगवान को याद करता है, माला जपता है, तीर्थ स्थल पे जाता है, वो अपना अंतिम यात्रा की तैयारी करता है. मुनि को भय है कि अगर वो मर जाएगा तो उसकी वाइफ का क्या होगा. मुनि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है. उसे लगता है कि मेरी वाइफ का क्या होगा मेरे मरने के बाद. उसे कोई बच्चे भी नहीं है, प्रोजेनी ने बच्चे. अगर बच्चे होते तो चिंता की बात नहीं थी, लेकिन उसे कोई बच्चे भी नहीं हैं. Only on the outskirts did he lift his head and looked up. He urged and bullied the goats until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village. He sat on its pedestal for the rest of the day. The advantage of this was that he could watch the highway and see the lorries and the buses pass through to the hills.
and it gave him a sense of belonging to a large world. तो जैसे तैसे मुनि अपने बकरियों को मारते पीटते, डराते धमकाते, ललचाते हुए सड़क के आगे आड़े टेढ़े रास्ते से आखिरकार वह जाकर जो हॉर्स है उसके पेडिस्टल तक पहुंच जाता है। यहाँ मुनि अपने बकरियों को चरने के लिए आज़ाद छोड़ देता है और वो जाकर हॉर्स के पेडिस्टल के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर बैठने का मुनि को एक फ़ायदा ये है कि वह आते जाते लॉरीज़ और बस को देख सकता है। इससे फ़ायदा क्या, उसे लगता है कि वह एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है। केवल अपने गांव के लोगों का, गांव की सड़कों का, गांव की दुकान का, खेत का और बकरियों का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि दुनिया में जो और लोग हैं उनका संबंध इन लॉरियों के द्वारा, इन कार के द्वारा, इन बस के द्वारा मुनि तक का पहुंच जाता है। तो ये बसेस जब आते जाते हैं, मुनि उस पेडेस्टल पर आकर बैठ जाता है और उसे लगता है कि हाँ, वह भी एक बड़े संसार का छोटा सा हिस्सा है। The pedestal of the statue was broad enough for him to move around as the sun traveled up and westward, or he could also crouch under the belly of the horse for shade. तो जहाँ पर मुनि शरण लेता है, जहाँ पर मुनि आकर बैठता है, वह हॉर्स का पेडेस्टल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। मुनि सूरज की यात्रा के साथ साथ जब सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है तो वह हॉर्स के छाँव के में जाकर बैठ सकता है। जहाँ जहाँ छाँव जाती है वहाँ वहाँ मुनि खसक कर बैठ जाया करता है। दोपहर के समय वह हॉर्स के पेट के नीचे भी आकर आराम से बैठ सकता है। इतनी जगह, इतना बड़ा स्टैचू ये हॉर्स का है। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, molded out of clay, baked, burnt, and brightly colored, and reared its head proudly, prancing its forelegs in the air and flourishing its tail in a loop. Beside the horse stood a warrior with scythe-like mustachios, bulging eyes, and aquiline nose. The horse itself was said to have been as white as a dhobi washed sheet, and had on its back a cover of pure brocade of red and black lace, matching the multicolored sash around the waist of the warrior. But none in the village remembered the splendor, as no one noticed its existence. Even Muni, who spent all his waking hours at its foot, never bothered to look up. It was untouched even by the young vandals of the village who gashed tree trunks with knives and tried to topple off milestones and inscribed lewd designs on all walls. This statue had been closer to the population of the village at one time, when this spot bordered the village. तो लेखक हमें यहाँ बताता है कि जो हॉर्स है लगभग लाइफ साइज हॉर्स है, काफ़ी अच्छा खासा, लगभग एक हकीकत में जो हॉर्स होता है उसी की तरह, उसी के आकार का ये हॉर्स है, उसी के साइज़ का ये हॉर्स है। ये हॉर्स मिट्टी का बनाया गया है, धूप में पकाया गया है और बहुत ही ब्राइट कलर से इसे पेंट किया गया है। हॉर्स ने अपने दोनों सामने के जो दो पैर है उसे आसमान की तरफ उछाल रखा है और उसकी जो दुम जो है बिल्कुल एक लूप की तरह, एक हंसिया जो होता है उसकी तरह ऊपर में हवा में उड़ाता हुआ है। हॉर्स के करीब ही एक योद्धा है और ये योद्धा भी एक बहुत ही बहादुर योद्धा है। उसके भी जो है बड़े बड़े मुच्छे हैं, बिल्कुल तलवार की तरह मुच्छे हैं
बड़ी बड़ी आंखें हैं और तेज नाक है। तो जो चित्रकार होता है, चित्रकार है, मूर्तिकार जो लोग होते हैं, वह जब मूर्तियाँ बनाते हैं या चित्र बनाते हैं किसी बहादुर योद्धा के, तो उनकी आँखों पर ज़्यादा जोर डालते हैं। बड़ी बड़ी आँखों वाला, घने घने मूँछों वाला योद्धा मतलब बहुत ही बहादुर योद्धा। तो ज़रूर ये हॉर्स और ये योद्धा किसी चीज़ का प्रतीक है, लेकिन गांव के किसी लोगों को इसके बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। क्योंकि ये कहा गया है इस हॉर्स के बारे में कि उसके हॉर्स जो है बिल्कुल सफ़ेद, जो धोबी के घाट से धुला हुआ जो बेडशीट आता है वैसा सफ़ेद हॉर्स ये कभी हुआ करता था। और उसके पीठ पर प्योर ब्रोकेट से बना हुआ लाल और काला लेस, सिल्क वाला लेस, बिल्कुल मैचिंग जो मल्टी कलर्ड शैश है, जो योद्धा के शोल्डर पे, जो योद्धा का जो कमरबंद है, कमरबंद से मिलता जुलता जो शैश है, उसी से मिलता जुलता ये ब्रोकेट लेस इस हॉर्स का जो बॉर्डर बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन किसी को इस हॉर्स के बारे में यह किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि ये हॉर्स यहाँ पर कब डाला गया था, क्यों डाला गया था। लगभग ये हॉर्स केवल मुनि के लिए एक लैंडमार्क हो गया, मुनि के लिए ये एक आसन बनकर रह गया, मुनि के लिए ये छतरी बन के रह गई। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने इस हॉर्स की तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक के गांव के जो बदमाश छोकरे, बदमाश जो लड़के हैं, जो पेड़ों के तनों पर अपना नाम छुरी से गोद गोद कर लिखते हैं, जो माइलस्टोन्स जो है उसको पलटाने की कोशिश करते हैं, और जो दीवारों के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें बनाते हैं, इन लोगों की भी नज़र में ये हॉर्स नहीं आया। इन्होंने भी इस हॉर्स को बख्श दिया। ऐसा कहा जाता है कि कभी एक ज़माने में ऐसा था कि जो हॉर्स जो था वह गांव से सिमट कर था, गांव से लग कर था। जब गांव एक बड़ा गांव हुआ करता था, गांव की जो संख्या थी, गांव की जो आबादी थी, अच्छी खासी संख्या में हुआ करती थी। लेकिन किसी वजह से, शायद यहाँ पर अक्सर सूखा पड़ने की वजह से, लोगों ने गांव को छोड़कर चले गए और केवल गिने चुने 30 घर के आसपास ही रह गए हैं। गिने चुने 3 या 4 गलियों वाला ही ये छोटा सा गांव रह गया है, किरताम नाम का। मुनि sat at the foot of the statue, watching his 2 goats graze in the arid soil among the cactus and lantana bushes. He looked at the sun. It had tilted westwards, no doubt, but it was not the time yet to go back home. If he went too early, his wife would have no food for him. Also, he must give her time to cool off her temper and feel sympathetic, and then she would scrounge and manage to get some food. फिर मुनि जो इस हॉर्स के नीचे बैठा हुआ है, मुनि ने भी इस हॉर्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। केवल जैसे मैंने बताया, उसके लिए आसन और एक छतरी का काम करता था और एक लैंडमार्क का काम करता था। मुनि की अब ध्यान जाता है कि सूरज कहाँ तक का पहुँचा है। शायद मुनि को ज़ोरों से भूख लगी होगी, सुबह बिल्कुल नाश्ता करके नहीं आया। बकरी तो है नहीं कि वो घास खा ले बेचारा। उसका आहार भी क्या था, जो आटा है, आटा से बना हुआ कुछ पॉरेज टाइप का बनाकर खाता था वो, या उसी का लड्डू बनाकर खाया करता था। टिफ़िन में भी उसे वही मिलता था। लेकिन आज उसके नसीब में ना पॉरेज था, ना लड्डू था, ना कुछ था। खाने की तो बड़ी तमन्ना थी उसे कि आज वह ड्रमस्टिक का, मूंगना फली का स्ट्यू, मूंगना फली का सूप बनाकर पिएगा, तरकारी बनाकर खाएगा। लेकिन उसके नसीब में एक दाना भी नहीं था। तो मुनि की नज़र सूरज की तरफ जाती है। सूरज हाँ ज़रूर वेस्ट की तरफ झुकता ज़रूर है, लेकिन वो पूरी तरह से ढला नहीं। मुनि अगर अभी घर जाएगा तो शायद उसकी बीवी जो है अभी भी नाराज़ रहेगी उससे, अभी भी उसका मूड ख़राब रहेगा, गुस्से में रहेगी।
और मुनि को गाली के सिवा खाने को और कुछ नहीं मिलेगा। तो मुनि सोचता है कि कुछ समय वो और यहाँ बिता लेता है, और बिता लेगा तो बेहतर होगा, उसकी वाइफ को भी थोड़ा दिमाग ठंडा होने को समय मिल जाएगा। और उसको जब मुनि के ऊपर दया आएगी, कैसा ना कैसा करके किसी न किसी घर में जाकर बर्तन कपड़े पोछा लगाकर झाड़ू वगैरह लगाकर कुछ कमा के ला लेगी, कैसे न कैसा करके कुछ अनाज इकट्ठा कर लेगी और खाने के लिए उसका बंदोबस्त कर देगी। तो वो अपनी वाइफ को थोड़ा समय देना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा और समय बिताता है, थोड़ा और यहाँ पर लंबा, थोड़ी और देरी के लिए बैठ जाता है। देखो, जो कहावत है कि जो कुछ होता है अच्छाई के लिए होता है, तो शायद आज मुनि के लिए ये जो कुछ हो रहा है, शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है मुनि के साथ में, लेकिन कहानी के अंत में हमें पता लगता है कि मुनि के साथ में कितना अच्छा हुआ है। मुनि ने किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही वो अंग्रेज ने, वो अमेरिकन ने किसी को धोखा दिया है। ये तो गैर समझ था। जो मुनि के नसीब में 100 रुपये आने थे तो 100 रुपये आए, और वो अमेरिकी जो नागरिक था जिसे इस हॉर्स में इतनी दिलचस्पी थी, उसकी भी किस्मत में शायद वो हॉर्स लिखा था, इसलिए उसकी गाड़ी यहाँ पर बंद होती है, वो हॉर्स लेकर चले जाता है। उस हॉर्स की भी किस्मत देखो, जो यहाँ पर निगलेक्टेड कंडीशन में था, जो यहाँ पर किसी के ध्यान में नहीं आ रहा था, उसे एक बढ़िया सा आलीशान घर मिलने वाला है, जहाँ पर ये अमेरिकी उसको अपने मकान में रखेगा और 100 लोगों को घर में बुलाकर बताएगा किस प्रकार से उसने इंडिया से इतना बढ़िया मॉन्यूमेंट लेकर आया है, इतनी बढ़िया मूर्ति लेकर आया है। तो जो कहते हैं ना, जो कुछ होता है वो अच्छाई के लिए होता है, इस कहानी में हमें वही सीखने को मिलता है। He noticed now a new sort of vehicle coming down at full speed. It looked like both a motor car and a bus. He used to be intrigued by the novelty of such spectacles, but of late work was going on at the source of the river, on the mountain, and an assortment of people and traffic went past him, and he took it all casually and described to his wife later in the day everything he saw. Today, while he observed the yellow vehicle coming down, he was wondering how to describe it later to his wife when it spurted and stopped in front of him. तो मुनि जब यहाँ पर बैठा है तो अचानक से वो नोटिस करता है कि एक नई प्रकार की गाड़ी रास्ते में फुल स्पीड पर आ रही है, और मुनि जब इसको देखा तो उसको लगता है कि ये एक कार है और बस, कार और बस का एक मिश्रण है। मुनि अक्सर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ करता था, जो कुछ गाड़ियाँ आना जाना, लोगों का आना जाना, और इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी दिखाता था। और शाम को जब वह घर लौटता था, जाकर अपनी वाइफ को जो कुछ उसने देखा, कितने बसेस आए हैं, कितने ट्रक आए हैं, कितनी गाड़ियाँ आई हैं, कितने कार आए हैं, कितने लोग यहाँ से गए हैं, सब के बारे में जाकर शाम को अपनी बीवी को जाकर सुनाया करता था। बीवी से चर्चा करने के लिए उसके पास कुछ टॉपिक हुआ करता। लेकिन आज तो बहुत ही अजीब दृश्य उसके सामने नज़र आ रहा है, और ये दृश्य ने मुनि को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल रखा है। क्योंकि अगर जाकर ये बताएगा कि मैंने आज एक अजीब सी गाड़ी देखी है, जो कि ना कार है ना बस है, दोनों कार और बस का एक मिश्रण है, तो शायद इसकी वाइफ को लगेगा कि बाबा जी सटिया गए हैं, मुनि सटिया गया है, बूढ़ा हो गया है, ये पागल हो गया है, इसे पता नहीं कि क्या देख कर आ रहा है। इसलिए बेचारा बड़ा सोच में पड़ गया है कि क्या जाकर मैं अपनी वाइफ को बताऊं। जब ये सोच ही रहा था कि अचानक से ये गाड़ी झटका खाकर जहां मुनि बैठा है उस रोड पर सामने में आकर गाड़ी रुक जाती है। A red-faced foreigner who had been driving it got down and went around it, stooping, looking and poking under the vehicle. Then he straightened himself up, looked at the dashboard, stared in Muni's direction
and approached him. "Excuse me, is there a gas station nearby? Or do I have to wait until another car comes?" He suddenly looked up at the clay horse and cried, "Marvelous!" Without completing his sentence, Muni felt he should get up and run away, and cursed his age. He could not readily put his limbs into action. तो जैसे ही मुनि ये सब सोच रहा था, अचानक से वो कार आकर, ये कार वैगन है एक्चुअली, ये कार वैगन आकर मुनि के सामने ही रुक जाती है। उसमें से एक लाल चेहरे वाला आदमी, लाल चेहरा क्योंकि गर्मी की वजह से का चेहरा लाल हो गया हो, ये तो है गोरा इंसान, इंडिया की धूप उसे बर्दाश्त नहीं हो रही जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। तो एक लाल फेस्ड फॉरेनर, लाल चेहरे वाला, लाल मुंह वाला फॉरेनर उस गाड़ी से उतरता है। वो झुककर इधर उधर गाड़ी पे देखता है, डैशबोर्ड की तरफ देखता है, फिर अचानक से मुनि की तरफ देखता है और वो मुनि की तरफ चल कर आता है और उसे इंग्लिश में पूछता है कि यहाँ पर आसपास में कोई गैस स्टेशन है क्या। ये गैस स्टेशन जो है ये हमें बताता है कि ये जो नागरिक है ये अमेरिकी नागरिक है, क्योंकि केवल अमेरिका में ही पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन के नाम से बुलाया जाता है। तो वैसा ही वो मुनि से एड्रेस करता है कि क्या आसपास में कोई गैस स्टेशन है। फिर अचानक से उसकी नज़र उस हॉर्स की तरफ पड़ती है तो ये चिल्ला उठता है, मार्वलस, अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत सुंदर, खूबसूरत, जैसा भी एक्सक्लेम करो उसको, उस तरह से वो चिल्ला उठता है, अपना सेंटेंस पूरा नहीं करता। और मुनि को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से खसक लेना चाहिए, यहाँ से भाग लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वह अपनी उम्र को कोसता है, क्योंकि अब उसके मन में क्या बैठ गया है कि वो बूढ़ा हो चुका है, 70 साल का हो चुका है। जब तक का उसके दिमाग में ये शब्द नहीं था कि वो 70 साल का बुज़ुर्ग इंसान है, तब तक का वो अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करता था। लेकिन अभी वो अपनी उम्र को कोसता है और सोचता है कि अब तो मैं अपनी पैरों को भी अपने हिसाब से हिला नहीं सकता, यहाँ से उसको भागना है तो भाग नहीं सकता। The red-faced man wore khaki clothes, evidently a policeman or a soldier. Muni said to himself, "He will chase or shoot if I start running. Some dogs chase only those who run. Oh Shiva, protect me. I don't know why this man should be after me." Meanwhile, the foreigner cried, "Marvelous!" again, nodding his head. He paced around the statue with his eyes fixed on it. Muni sat frozen for a while and then fidgeted and tried to edge away. Now the other man suddenly pressed his palms together, smiled and said, "Namaste. How do you do?" तो जब ये आदमी जब उतरता है तो मुनि नोटिस क्या करता है कि ये तो रेड फेस आदमी, गोरा इंसान तो है ही है, लेकिन उसने खाकी वर्दी पहनी है। खाकी वर्दी पहनी है तो हो ना हो ये या तो एक पुलिस मैन होगा या तो फिर एक फ़ौजी होगा। और मुनि ने अपने आप से कहा कि अगर वह यहाँ से भागेगा तो ये पुलिस वाला उसका पीछा करेगा और उसे गोली मार देगा। मुनि कहता है कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि भागते इंसान को पकड़कर काट लेते हैं, वैसे ही अगर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो ये फॉरेनर पुलिस वाला जो है गोली मारकर मुनि की हत्या कर देगा। मुनि अपने भगवान को याद करता है, कहता है, "ओ शिवा, मुझे इस मुसीबत से बचाओ, मुझे इस मुसीबत से बचाओ, पता नहीं ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ गया है।" और उतने में ये फॉरेनर मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, फिर से चिल्ला उठता है, "मार्वलस, अद्भुत, अविश्वसनीय।" मुनि सोचता है ये अच्छा मौका है खसकने का और धीरे धीरे वहाँ से खसकने की कोशिश करता है। तब जाकर ये फॉरेनर मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर मुनि से कहता है, "नमस्ते, हाउ डू यू डू?" At which Muni spoke the only English expression he had learnt. Yes, no. Having exhausted his English vocabulary, he started in Tamil. "My name is Muni. These two goats are mine, and no one can gainsay it.
though our village is full of slanderers these days who will not hesitate to say that what belongs to the man doesn't belong to him. तो मुनि घबरा उठता है, मुनि एक्सप्लेनेशन देता है, और मुनि के पास जो इंग्लिश वर्ड है उसके डिक्शनरी में येस और नो वो कह देता है। फिर उसके बाद में तमिल में बातें करता है, सफाई देता है कि ये 2 बकरियां उसी की है, और गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये बकरी उसकी नहीं बल्कि उनकी है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं और अगले क्लास में हम इससे आगे अपना चैप्टर बढ़ाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज टायरन मेंडोंसा फ्रॉम पिल्ले कोचिंग क्लास साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।